Okay, so good morning. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, Quaidians, for our panel, our members, Quaidians in general, and our from North America members, and our organization, Quaid-i-Azam University, North American Quaidians board members who are all here. So I will briefly take few minutes to introduce who we are, what we are doing, and then we will give the podium to our panel of today's, and then hear from them. So I put their information here, and we are an organization which is established 2 years ago. Let me see. I'm trying to. Yeah. Okay. So we registered in Canada. We established in 2022, less than 2 years old. And if I, in a few words, if I tell what our objectives are, what we are doing, so we are basically connecting with each other, we're engaging each other to foster the innovation and also motivating next generation of Canadians and their families. By families, I mean their next generation of children. So our objective is to create a Pakistani owned economy in North America, and which may translate same effects or similar trend in Pakistan. We have a website, and the address is here, and you can basically go to our website, which is under construction, but there's some information, there are some pictures over there, and one can learn more about it. So here is the organizing committee for the QAU-NA, Quaid University North American Association. We call it as the board members. There are 8 of them for now, and we are in the process to extend this to 11. Faisal Said from computer science, Farash Meem, and Khalid Mahmood, myself, Saif, who is right now in Pakistan, Tariq, who is in Michigan, Saida, who is in Texas, Arshad, who is in Toronto area, Umar Siddiqui is in Ottawa, in Canada. And then we have Fida today, and he is the one who is a liaison between us and the panels, and he is a very motivated person, very politically savvy person, and he is teaming up. He's our member in general, and he's teaming up with on one hand with us, on the other hand with the panels to make it happen. So I will go through a few points of logistics. This is the first of 4 sessions, Saturdays from today until February 3rd. Every Saturday will be one panel will be coming here, and will give them opportunity to present their case to the members, so that when the voting time comes, they can vote as depending on what they have learned. The 5th session will be February 10th, and that will be where all one member from each panel will come. There will be 4 head-to-head or face-to-face, and that is in more or less in a debate format. All participants stay muted today, except speakers. When people who are speaking, they can unmute. The rest of the everybody stay muted for a better listening. Please send your questions right now in the chat box. No live questions will be entertained today. And we have a set of questions which we already solicited from our members. They have given us a sense of, we have like maybe 30 to 50 questions which we receive, and we will pick and combine them in some shape and form. Equal similar content will be combined in one question, and that will be done here at our side by the moderators. Quaid University NA and moderators are non-partisan, and they will stay non-partisan. So our organization has nothing to do with politics. And if you see or hear anything, then please let us know. This is a 2-part presentation. First part, 20 to 30 minutes, panels time, and then followed by question answer sessions. Total duration will be 60 minutes, but not more than 90 minutes. Session is recorded and will be available for offline views on the website and also via YouTube channel of us. So
you are the first for our panel. You are the first one. So I feel that you may be at a disadvantage or maybe at advantage, depending on how you are see your position. However, if you keep watching the rest of the panel's presentation as well, and at any time, if you feel you are shortchanged in any shape and form, then please let us know, and then we will make it correct. And if there will be any mistake done, so we will make and try to remedy that. So having said that, I would like to now introduce the moderators. There are two of them, Fida Khan and Faisal, and they are sitting together in Toronto area. Faisal is a computer science graduate, Fida is a physics graduate, and they have been very capable. So they will be moderating. However, from me, the podium will go to Rehan and the team, and followed by the moderators. And there will be break in between when after the presentation for our panel, and then I will come back and we'll talk about one of our programs. We have 4 programs, and we decided to introduce each program in every Zoom call, so that you, in the while we are learning about you, you are also learning about us. So with this, I transfer the podium to Rehan and company. Rehan sir, are you there? Rehan, are you there? Yeah. Unmute yourself. So if you guys want your presentation to be shown while you are talking, let us know. I think Rehan is on mute. Can somebody reach him on the phone, please, and tell him to unmute himself? We are trying to reach him on phone. We are doing that. Okay. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Rehan साहब हमें remotely join कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ technical glitch हो. So then might be the second in command is Dr. Ghulam Ali Mullah. अच्छा, तो फिर उनकी जगह कौन करेंगे? मल्ला साहब हैं. मल्ला साहब अनम्यूट. हाँ, ठीक. जी शायद साहब प्रेजेंटेशन ये सामने है और Malla sahab, if we briefly introduce ourselves and then we'll go for the presentation, is that okay? Okay, all right. So this is Dr. Ghulam Ali Mullah. I'm professor of computer science. I did my master's in 95, and then I joined Shah Abdul Latif University Khairpur as a professor, and I worked over there for 22 years, and now I am working as executive director, Interboards Coordination Commission, IBCC, at Islamabad, Ministry of Higher Education. Yes, Shah sir. Thank you, Dr. Mullah. So may I request my other colleague, Madam Rifat, to introduce herself. Please unmute. Madam Rifat. I'm Rifat Shaheen. I did my master's in economics in 1991. And in 1992, I attempted different exams, competitive exams, and got through Banking Finance Commission and joined First Women Bank as officer grade 2. And since then, I'm working with First Women Bank. And nowadays, I am vice president and holding the position of regional audit head North.
That's all from my side. Okay, thank you, madam. Let me introduce myself. My name is Shahid Mahmood Minhas, and I did my master's in Pakistan Studies from Quaid-i-Azam University. In 1996, 1998 was my batch. Then I have another master from another university, Open University in Educational Planning and Management. Then my MS in Public Health from Health Services Academy, and a postgraduate course on victimology and victim assistance from Tokiwa University, Japan. And I've worked with a number of international organizations like International Rescue Committee, International Catholic Migration Commission, and then UNICEF. Then I went to University of Gujarat as Director External Linkages, and I was held responsible to establish 4 departments as it was a new university. From 2008 to 2013, I was there. And then I came to Islamabad and joined Sustainable Development Policy Institute. It's a policy research institute, and I'm having the portfolio of capacity development. We offer training, customized training, open enrollment training, and other trainings. It's a basically policy research institute. So it has 3 core areas. So my domain is training program and partnership and collaboration with research and academic institutions. So this is brief about myself. And I'm here in this panel as contesting for the media secretary. Thank you. So anyone from my panel, if he's there, he or she's there, he or she may introduce, then we'll move to the presentation. Hello. जी जी रेहान साहब अपने आप को अनम्यूट कर जी रेहान साहब प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. हेलो, आवाज आ रही है? We can hear you. Yeah, शुक्र. अच्छा सर, let me introduce myself to the moderators. मेरा नाम रेहान सईद खान है. I belong to MSc 1991 session of anthropology. I belong, my city is Lahore, more precisely from Pakistan. I did my graduation from FC College, then I moved to Quaidian University. After doing my master's, I appeared in 3 consecutive CSS exams. In one exam, I got 196, another 216, could not get the allocation. Then joined Prime Minister's Secretariat. It was my first public assignment during Benazir Bhutto's era, and then joined Intelligence Bureau as Assistant Director, Counterintelligence, Islamabad. And then, unfortunately, or fortunately, retrenchment was done by Nawaz Sharif era, and I was shown the doors. Then a struggle started for finding a new job. Meanwhile, I did many assignments, like I worked for Sahara for Life, Abrarul Haq's Hospital. Then I went to Malaysia, ran a family store, came back to Pakistan, did my agriculture. And then in 2002 in Karachi, I joined Pak Oman Investment Company as Manager Administration and HR. There I did my MBA from Karachi University. It was affiliated with Pakistan Institute of Management. Did my MBA in the evening program. Continued with the job with Pak Oman Investment Company. Then joined Agro Foods in 2011. Agro is a big conglomerate in Pakistan. I joined Sahiwal plant, the manufacturing facility of Agro Foods, as Manager Administration and HR. In 2013, I came back to Karachi and then continued with Agro Foods for till about 2018. Resigned from Agro Foods as Senior General Manager, Corporate Affairs and Government Affairs, and joined K Electric as Director of Government Affairs. From there, I joined HUPCO as Advisor Government Affairs. And meanwhile, I created my own company that was an AOP, Silver Line Associates. It was engaged in consulting business on government affairs and corporate affairs with corporate entities.
I also joined National Resources Limited as a consultant for a Rakutech project, and these negotiations with Barrick was done, and I was engaged in those negotiations as well. And now, I'm running my own company, Silverline Associate, as consulting, and I have created another company of my that is Overseas Employment Promotion Company, OEP it is called, with the name Talent Checks. This is a brief introduction of myself. This ad was given in November for alumni elections. We reached out to the university administration, spoke to them, and discussed them the modalities and how are they going to conduct the elections. Convinced them to gear up the registration process. As you know, this is the first ever elections of the alumni in the history of Quaidian University. So we had a detailed meeting with Vice Chancellor, Dr. Niaz, then Registrar, Dean, and other important people of Quaidian University. And we discussed with them the modalities for the elections, how they are going to conduct it, and it is as I've already told you that this is for the first time they're holding elections, so they have certain confusions about it. Also, they didn't have any system to actually conduct it, so they started making the system, gearing up the registration process, and now. Meanwhile, my friends, my seniors, my elder brother is Imran Said Khan. He belongs to 1987 batch, PSS. So Quaidian University was a phenomena for me since 1987. So my friends, my senior colleagues and grand senior and super seniors, they actually nominated me for this position, and we started looking for the panel, and the first choice was Dr. Malla of IBCC, a very effective person. I know him since he joined IBCC. Then we requested Ahsanullah Marwat, he is Director General Postal Services of Pakistan. And then we requested Ms. Rifa Shaheen. Fortunately, she is wife of our friend Rashad. So we got the recommendation about her from our many friends. So she is working with First Women Bank. Then we requested Dr. Khalib Arech. He is based in Quetta. Dr. Asfia, and then Shahzad Naeem. He is Director General KPK, belongs to Audit and Account Group of 20th Common. Then we requested also Shahid Minhas to join the panel. So the panel in front of you is consisting of professionals, dedicated, and they have they are here for the university, and we are all here for the university. So this is from my side at the moment. A brief introduction. Hello. Thank you, Rihan साहब. आपकी presentation online है. Any of आप या panel में से कोई हमें इस presentation से walk through करेगा? जी, मैंने ये पूछना था, शहजाद नईम ने ज्वाइन किया सर? शहजाद नईम ने, मला साहब, शहजाद नईम ने नहीं ज्वाइन किया? चले मैं सर शुरू करता हूँ, बिस्मिल्लाह करता हूँ. हमारा जो देखिए, ये हमारे जो है ना विश लिस्ट है, ये जो मैनिफेस्टो है, ये हमारी विश लिस्ट है कि ऐसा हो तो चीजें बेहतर होंगी और हम आगे चल सकेंगे. Quaidian यूनिवर्सिटी में इफेक्टिवली आप ये बताऊं मैं आपको कि
अलुमनाई जो है वो काम कर रही है कि 2001 से दो से जो हमें पता चला। और वो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं आई एम नॉट वेरी प्रीवी टू इट, आई एम नॉट, हमें ज्यादा नहीं पता उसके बारे में। लेकिन हमने जो एक विश लिस्ट बनाई और हमने जो सोचा वो ये था कि हम सबसे पहले, मेरा जो फोटे है वो है टू कनेक्ट द पीपल, लोगों को कनेक्ट करूं। और दिस इज आई एम डूइंग सिंस माय चाइल्डहुड। मैं आपको बताऊं, मेरे आज पहली क्लास का भी मेरा दोस्त है ना, जो मेरे साथ पहले दिन बैठा था लाहौर में जूनियर मॉडल स्कूल में, वो आज भी मेरा दोस्त है। मैं आज भी उससे कनेक्टेड हूँ। मुझे वो, मैं उस वक्त 4 या 5 साल का था तब का वो मेरा दोस्त है। आज मेरी 55 एज है और 50 साल से मेरी दोस्ती है, लड़ाइयाँ दोस्तियाँ सब कुछ हुई। मैं लोगों को कनेक्ट करके लेके चलता हूँ। और मेरी जो यही मैं, इसी चीज का मुझे जो है ना फख्र है कि मैं पाकिस्तान के हर कोने में जहाँ दोस्त बैठे हुए ना उनसे, या बाहर दोस्त बैठे हुए हैं उनके साथ मैं राब्ते में रहता हूँ। हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद उनको फोन कर लेता हूँ, राब्ता कर लेता हूँ, उनकी खुशी गमी में शरीक होता हूँ। और ये भी पता होता है कौन कहाँ है और क्या कर रहा है। तो ये मेरा जो अ, मेरी स्ट्रेंथ है, ये मुझे सबको इन्होंने, इसी ने कन्विंस किया लोगों को कि मैं इस पैनल को बनाऊं और हम लुमनाई के लिए कुछ करें, कायदे यूनिवर्सिटी के लिए कुछ करें। तो फर्स्ट पॉइंट इज माय टू क्रिएट एन एंडोमेंट फंड। देखिए, कोई एंडोमेंट फंड जो है वो, उसका मकसद ये होता है कि उसके रेवेन्यू से बाद में किस स्टेज पे, जब वो एक दफा एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाए, तो हम उसमें उस रेवेन्यू से हम अपने काम कर सकें, बच्चों की स्कॉलरशिप्स के लिए अपने प्रोजेक्ट्स कर सकें। अभी मैं आपको लेटेस्ट बताता हूँ, नस्ट में इन्होंने प्रोविडेंट, उनका एंडोमेंट फंड में $90 million की कंट्रीब्यूशन हुई है, एंड यूनिवर्सिटी भी ऐड कर रही है उसमें। और वो कोई 16 मंजिला बिल्डिंग नस्ट की प्रीमिसेस में बन गई, जिसमें कुछ ऑफिसेज भी होंगे, जिनके रेंटल से या जिनकी इनकम से वो अपने एलुमनाई के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको वो देखें। तो फर्स्ट थिंग इज माय इज इज आर, जो हमने करना है वो है कि एंडोमेंट फंड क्रिएट करना है, जिसके लिए हमें बड़ी सपोर्ट चाहिए होगी हमारी डायस्पोरा से भी, हमारे जो एलुमनाई जो एस्टेब्लिश्ड है, इसके लिए एक ऑर्गेनाइज एफर्ट करनी पड़ेगी। और एक आपको चीज, एक मैं आपको अर्ज करता चलूं कि हमारे यहाँ माशरे में ना सबसे जो ज्यादा चीज लैक करती है वो है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी की वजह से हम लोग जो है वो घबराते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में कुछ, या हम रिलक्टेंट होते हैं किसी प्रोजेक्ट में अब रेवेन्यू देने से या कुछ इनपुट देने से। देखिए, मेरे लिए जो लास्ट प्रायोरिटी होगी वो ये होगी, मैं किसी से पैसों करता हूँ पैसे। बट अगर एंडोमेंट फंड ऑफिशियली क्रिएट हुआ है, प्रॉपरली उसको मैनेज किया जा रहा है, तो ये इससे अच्छी चीज कोई नहीं। इसमें आप हमारे हम एक तो आपकी गाइडेंस से चलेंगे, हमें आप अपने तजर्बात से बताएंगे कि बाहर की दुनिया में जो लुमिनाइज हैं वो कैसे काम कर रहे हैं और उनका एंडोमेंट फंड कैसे कर रहे हैं। एक आपको सरप्राइजिंग चीज बताऊं, कायदे यूनिवर्सिटी की अलुमनाई रजिस्टर्ड नहीं है। मुझे अभी डीन से मेरी बात हुई पिछले हफ्ते, और लाइक बुध के दिन सुबह, अभी इसी वेडनेसडे की सुबह हम डीन के पास बैठे थे। उसने कहा एलुमनाई रजिस्टर्ड नहीं। तो सबसे पहले तो चीज ये करनी है इसको, कि इसको एक ट्रस्ट के तौर पर या एनजीओ के तौर पर कि हमने रजिस्टर करना। वो जो पहले एलुमनाई काम कर रही है, जो फाउंडर्स ग्रुप की है, मुझे उसका ये नहीं पता कि उन्होंने क्या अपनी आप को रजिस्टर कराया हुआ। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि हम एलुमनाई को रजिस्टर करें, और अंडर द बैनरशिप, अंडर द गाइडेंस ऑफ कायदे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। आपको याद होगा कि जब हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में 90s में, तो मेरी फीस थी 270 रुपये। तो उस वक्त 35 रुपीज स्टूडेंट, हमारी फी का एक 35 रुपये था, जो कि एंडोमेंट फंड के, एलुमनाई एंडोमेंट फंड के नाम पे था। जो कि मैंने जब उनसे डीन से पूछा तो उन्होंने कहा ये अब नहीं एग्जिस्ट करता,
अब हमें उसका पता ही नहीं कि उस फंड का बना क्या। ये उनका जवाब था मेरे लिए, तो मेरे लिए काफी हैरान कुन बात थी। सेकंड, जो एंडोमेंट फंड के बाद जो मेरा, और ये जो फंड है ये मेरा सपोर्ट करेगा बच्चों को की स्कॉलरशिप्स पे, रिसर्च पे, उनकी एजुकेशन। आपको याद होगा जब हमारी यूनिवर्सिटी बनी थी तो वो उसका बेसिक जो क्रिएशन का मकसद था वो यही था, रिसर्च। और शुरू में पीएचडी प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसके बाद एमएससी प्रोग्राम हुआ, एमफिल हुआ, एमएससी हुआ। अब सिलसिला ये है कि अब यूनिवर्सिटी में रिसर्च कहाँ हो रही है हमें नहीं पता, लेकिन अंडर ग्रेड प्रोग्राम शुरू हो चुका हुआ है, 2010 में शुरू हुआ था। इस वक्त आज यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ 14,000 स्टूडेंट्स, 14,000 स्टूडेंट्स। मेरे दौर में 1990, 91, 92 में मैंने पास आउट किया था, उस वक्त आई रिमेम्बर कि 1200 या 1300 कौन स्टूडेंट्स। आज 14,000 स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी का जो है समझ नहीं आती, जब आप यूनिवर्सिटी अब एंटर होते हैं तो अब आप 12 को की साइड से एंटर होते हैं, या फिर बड़ी इमाम की तरफ से भी उन्होंने दोबारा एक्सेस दे दी है आने की। एक ह्यूज पॉपुलेशन स्टूडेंट्स। फैकल्टी कितनी काबिलियत रखती है, नॉट श्योर। हमें हमें याद है कि हमारे दौर में कायदे यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 35 से 37, 37, 38 सिर्फ पीएचडी प्रोफेसर थे, पीएचडी जो वहां पढ़ा रहे थे। फिजिक्स में भी इससे इतना ही नंबर था। आईआर डिपार्टमेंट में 6 या 7 डॉक्टर थे पीएचडी। अब क्या है कि अब आईआर डिपार्टमेंट भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, और पॉलिटिकल स्टडीज भी है, एंथ्रोपोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है। ये नहीं समझते कि ये क्यों है इस तरह दो डिवाइड करके, नहीं एक से एक डिग्री उन्होंने बना, लेकिन बहरहाल हमें इसको एक दफा खुद डाइव इन करना पड़ेगा कि वो वहाँ कौन कौन से कोर्सेज, क्या क्या हो रहा है, लॉ भी हो रहा है। फिर जो उधर बच्चे हैं वो मुझे बहुत डिसोरिएंटेड लगे, मेरी मुलाकातें हुई कुछ बच्चों से, वो उनको कैरियर काउंसलिंग के नाम पे कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझसे एक दिन बात कर रहे थे कि बाहर से हमें, अमेरिका में जो बैठे हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा वालों और ऑस्ट्रेलिया में जो बैठे हुए हैं, उनसे हमें क्या चाहिए। तो मैंने एक ही जवाब दिया कि हमें उनका वक्त चाहिए। वो कुछ ही गमी में पाकिस्तान आते हैं, वो दोस्तों से मिलने आते हैं, किसी सरकारी काम से आते हैं, और हर वक्त कोई ना कोई फ्लाइट पे पाकिस्तान आ रहे हैं। मेरी सिर्फ उनसे ये गुजारिश होगी कि वो वक्त दें। अगर वो फिजिक्स पढ़ाते रहे तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में आ जाए, अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ाते रहे तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आ जाए, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में, पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाते हैं पाकिस्तान स्टडीज डिपार्टमेंट में। वो आए, बच्चों को टाइम 3 दिन दें, 4 दिन दें, उनकी मेंटरिंग करें, उनकी काउंसलिंग करें, उनको उनको रास्ता दिखाएं, अपने एक्सपीरियंसेस बताएं कि जब वो आए थे यूनिवर्सिटी में तो क्या था, आज वो कहाँ किस किस तरह वो मेहनत करके कहाँ किस स्टेज पे पहुंचे। उनको एक रास्ता दे रहे होंगे, उनको एक डायरेक्शन दे रहे होंगे, उनको एक हौसला दे रहे होंगे, उनके हीरो बन रहे होंगे। वो इस वक्त जरूरत है। हमने जब मैं एंग्रो में नौकरी की तो हम लोगों का एंग्रो में एक बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया जाता है, ये इदारे से आज भी बहुत मोहब्बत है। वहाँ कैरियर काउंसलिंग और मेंटरिंग, ये एक बेसिक बेसिक काम है एक सीनियर का करना। वो हमसे हमसे पूछते रहते हैं कि आपने उसकी मेंटरिंग की उस बंदे की, उसको समझाया, उसको रास्ता दिखाया, उसकी क्या आपने और उसके कैरियर काउंसलिंग कैसे की। अच्छा, अब मैं इसमें हमें कोई इफेक्टिव प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, मेंटरिंग प्रोग्राम्स, और वो आपकी गाइडेंस से होंगे। आपने हमें बताना है उसके बारे में, हमें उसके देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुझे एलुमनाई का कोई जाती एक्सपीरियंस नहीं। मैं ये कहूँ कि मैंने कोई एलुमनाई की पे पहले काम किया, मैंने लोगों को जोड़ा है, लोगों के साथ गेट टुगेदर्स करवाई है यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैंने इफेक्टिवली किसी भी एलुमनाई में इस तरह काम नहीं किया। मैं, मेरे साथ मेरे कोलीग्स हैं जिन्होंने एक आधा ने काम भी किया होगा, लेकिन मैंने नहीं ज्यादा काम किया। लेकिन मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए, हैंड हैंडलिंग चाहिए। आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके चलो। आप बड़े भी हैं, मेरे साथ के भी हैं, मेरे जूनियर भी हैं, लेकिन आपके पास दिन के बाद तजुर्बा है। आप बाहर बैठे हुए,
आप मुझे बता सकते हैं कि हार्वर्ड की एलुमनाई कैसे कर रही है, कोलंबिया की यूनिवर्सिटी कैसे कर रही है, कॉर्नेल की कैसे कर रही है, ऑक्सफोर्ड की कैसे कर रही है? आपने मुझे मेरा हाथ पकड़ा, मेरी नीयत बहुत अच्छी। मैंने ये अपने कॉम्पिटिटर है मेरे डॉक्टर अजीज नसर साहब को मैंने फोन पे कहा कि सर मैं आपके साथ हूँ, खुदा ना खास्ता इलेक्शन हार भी गया तो मैं अब नियत बांध चुका हूँ। मैंने QAU के लिए अपनी कैपेसिटी, अपने रिसोर्सेज के साथ मैंने लगे रहा, मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ, मैं कुछ ना कुछ करता ही रहूँ। उसमें मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, स्कॉलरशिप के लिए हमें बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए मैं आइडेंटिफाई करना, टैलेंट हंट कर रहे हैं कि किसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, दोज हु डिजर्व इट। हम इनफॉर्मली तो इस तरह के काफी काम करते रहे हैं बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए। हमारे अपने दोस्त हैं जिन्होंने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, जिस तरह साजिद खान है उसने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ, वो जिस तरह 7-8 साल से ज्यादा अर्सा हो गया जो वो प्रोग्राम था उसमें हम लोग कंट्रीब्यूट करते आए। लेकिन इसको अब एक ऑर्गेनाइज और इफेक्टिव तरीके से करना होगा। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जब मुझे याद है 1990 में तारिक मलिक और मेरा रिजवी आज और एक दो और हमारे कलीग्स थे यूनिवर्सिटी के, वो उस वक्त 91 में या 91 में शायद ये लोग गए थे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, बाहर कनाडा ही गए थे। हमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करेंगे और वो उस वक्त होगा कि जब मेरे आप दोस्त जो बाहर बैठे हैं वो जो पाकिस्तान आके यूनिवर्सिटी में विजिट करेंगे, यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे, वहाँ के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको देखेंगे, जो वहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे मिलेंगे और उसके बाद खुद को आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए हमारे साथ, इंटरनेशनल पार्टनरशिप के साथ होगा। और हमें एक देखिए हमारे फैकल्टी, कुछ हमारे अपने पुराने दोस्त हैं यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, वो आज यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में IR में है, फिजिक्स में है, मैथ्स में है, वो पढ़ा रहे हैं। हम उनकी भी डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। देखिए हमने, वी आर नॉट गोइंग टू रन द यूनिवर्सिटी, वी आर हियर टू facilitate the university in their larger goals। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सारी मेरी हमारी विश लिस्ट, हमारी विश लिस्ट के ऐसे हो तो। अब रिसर्च पे आ जाते हैं, छठा पॉइंट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। देखिए हमें, मुझे पिछले दिनों किसी ने बताया कि केमिस्ट्री की लैब में इनका बजट नहीं है कि केमिकल्स ले सके। यकीन जाने कि मैं तो अंदर नहीं गया, लेकिन जिन्होंने मुझे बताया मुझे, मैं बड़ा अफसोस हुआ कि ये हालात हो गए। मुझे अभी जब मेरी पहली मीटिंग हुई थी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उन्होंने कहा कि वी आर इन अ डेफिसिट ऑफ 1 बिलियन रुपीज। सो देयर इज अ सीरियस इशू विद द बिजनेस मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी। 14,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट का भी फंड आ रहा है, फेडरल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करी, उसके बावजूद 1 बिलियन का डेफिसिट है। 1 बिलियन डेफिसिट, एक एक कमरे में 4-4, 5-5 बच्चे रहे। हॉस्टल अकोमोडेशन का देख के आदमी को हिल जाता है। ये वहां जिस हॉस्टल में हम रहे हैं, एक कमरे में 2-2 लोग होते थे। और बहुत कभी कुछ होता था तो हम वो जो नीचे हॉस्टल 1 में, हॉस्टल 3 में बड़े कमरे थे जो फ्लैट के साथ होते थे, उधर हम 4-4 बच्चों को एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन दे यूज्ड टू लिव कंफर्टेबली। अब वहाँ ये हालात नहीं। तो सो द इशू, देयर इज अ सीरियस इशू विद द बिजनेस मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी। मेरे लिए, आपके लिए सबसे यूनिवर्सिटी नंबर 1 प्रायोरिटी है, उसके स्टूडेंट्स आर द बिगेस्ट प्रायोरिटी फॉर अस। उन बच्चों को, आपको याद होगा कि 1990, 91 में और 80s में आप जब पढ़ रहे थे, क्वाइडियन यूनिवर्सिटी का MBA डिपार्टमेंट से लड़का फारिग होता था, बच्चे फारिग होते थे और फौरन जॉब उनके हाथ में हथेली में, ये लो आप जॉब कैंप्स लगते थे। आज हमारे क्वाइडियन यूनिवर्सिटी Tier 3 यूनिवर्सिटी में आ गई। मैंने जब 93 में CS का क्वालिफाइड एग्जाम दिया था तो हमारी यूनिवर्सिटी से 40 से 45 लड़के थे, लड़कियां, जिन्होंने क्वालिफाई किया था, जिन्होंने CTP ज्वाइन किया। और ये मुसलसल चलता रहा 10-12 साल तक। 15, 40, 45 ये एवरेज रहती थी। ऑलमोस्ट 22, 24, 25% हमारे कायदियन होते थे हर कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी उस दिन मैंने पूछा 14,000 बच्चों में
जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से जो जिन्होंने ग्रेजुएट्स ने और एमएससी वालों ने अप्लाई किया है, सीएसएस का इम्तिहान दिया है, इनमें 5 लोगों ने क्वालिफाई किया। अब कौन सी यूनिवर्सिटियों के बच्चे आ रहे हैं? नस्ट के, लब्स के, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बच्चे अब क्वालिफाई करके सीएसएस करके आ रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं आ रहे। 5 बच्चे। आप जरा प्रोपोर्शन देखिए कहाँ आ चुका है। तो फिर बड़ा ही सीरियस इशू चल रहा है इसका, मतलब को बहुत ही मसाइल है। मैं आपको एक बात, तो मैं गया लास्ट टाइम, तो कैफेटेरिया का दरवाजा जो है ना, पुराने हमारे कैफेटेरिया का दरवाजा, आपको यकीन नहीं आएगा, आज भी वही दरवाजा फंसा हुआ है, शीशे टूटे हुए, अंधेरा उस कैफेटेरिया के हॉल, ऐसा बेरौनक हो गया। हमें उसमें लाइफ देनी है, हमने उसको जगाना है। हम अपने अपने लेवल पे बहुत कुछ कर सकते, बहुत कुछ कर सकते। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, बट वी कैन कंटिन्यू टू लॉन्ग। हम थोड़ा थोड़ा कर, मुझे जो मेरे दोस्त जानते हैं उनको ये पता है कि मैं जिस काम को पकड़ लेता हूँ करता जरूर, पीछे जरूर पड़ता हूँ उसको मैं उसकी अंजाम तक ले जाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ऑब्जेक्टिव अपनी मीट करने की कोशिश करता हूँ। मैं जिन कंपनियों में भी काम किया, अल्लाह का शुक्र है, दे वर वेरी हैप्पी विद मी, दे प्रमोटेड मी, दे looked after me because I was contributing to them. And this is I'm a very serious guy in this. If I commit something, तो मेरी क्रेडिबिलिटी यही कहती है कि मैं वो करके दिखाऊं। और उसके लिए मुझे अपने स्टेक होल्डर मैनेज करने हैं, उसके लिए मैंने अपने दोस्तों को सपोर्ट भी मांगा। और मैं आप सब हूँ, आपने मेरी जात के लिए कुछ नहीं, प्लीज मेरा आपसे गुजारिश है कि आप मेरी जात को साइड पे करके आपके लिए आज अपना वक्त दे रहे हैं, आप वीकेंड पे, तो सिर्फ कायद यूनिवर्सिटी के लिए, सिर्फ कायद यूनिवर्सिटी। मुझे उन्होंने जब पहला फिदा साहब ने भेजा लिंक, तो मैंने कि कौन कौन पहले प्रेजेंटेशन देगा, सबसे पहले मैंने अपना नाम दिया, क्वाइडियन फॉरएवर पहले। दूसरा भी शायद साहब कह रहे थे कि इसका बेनिफिट भी है, इसका नुकसान भी है। मुझे ये नहीं देखना कि मुझे कोई कॉपी करेगा या मैं उससे लर्न करूंगा या मैं अपनी इस चीजों को इम्प्रूव कर लूंगा। मैंने तो वही करना है जो मेरा दिल कहता है, मेरे दोस्तों का और लार्जर ऑब्जेक्टिव वो करना ही है। और अगर मैं इलेक्शन नहीं भी जीता, मैंने फिर भी करना, ये अब करना ही करना। मैंने मुझसे उस दिन किसी ने पूछा कि आपने कुछ किया आज तक यूनिवर्सिटी के लिए, मैंने उसका एक जवाब ये दिया कि देखिए हम अपने माँ बाप के लिए क्या कुछ करते हैं। अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को जो नसीब फरमाया, वो दुनिया से चले गए, हम उनके लिए क्या क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। लेकिन एक काम किए करता हूँ, मैं अपने बहन भाइयों को और उनके बच्चों को सबको जोड़ के रखता हूँ। और यही मेरा है कि मैंने अपने दोस्तों को जोड़ के रखना है, अपनी यूनिवर्सिटी को जोड़ के रखना है। दैट्स द बॉटम लाइन फॉर मी। और जुड़ने से, टुगेदरनेस से, कनेक्टिविटी से दुनिया बदल जाती, दुनिया बदल जाती। और हम बदल सकते हैं। हम लॉस ग्लोरी को अगर पूरी तरह ना भी ला सके तो चीजें तो ठीक कर सकेंगे। फखर से ये तो कह सकेंगे कि आज कायदे यूनिवर्सिटी का बच्चा फिर एक्सेल कर रहा है, आज कायदे यूनिवर्सिटी का बच्चा फिर किसी मल्टीनेशनल में नौकरी लेने जा रहा है, आज कायदे यूनिवर्सिटी का बच्चा फिर एसी एएसपी बन रहा है। ये क्या कि 5 बच्चों ने क्वालिफाई किया। यूईटी के बच्चे होते थे, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के होते थे, जो कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते थे, वो जलते थे हमसे कि ये 35 बच्चे जो आए हैं, 35 लोग जो कायदे यूनिवर्सिटी से आए हैं सीटी में, कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम वाल्टन में, ये तो इतने जुड़े हुए आपस में, और ये कमाल लोग यार। ये कायदे यूनिवर्सिटी वाले 35 40 का बैच है। आज क्या है, 5 बच्चे। अच्छा सर, मेरा एक जो एक फोटे एक और है कि मैं कराची में होता हूँ, मल्टीनेशनल के साथ काम किया है, और मैं कॉर्पोरेट के साथ बहुत कनेक्टेड हूँ, बहुत इनके साथ मेरा एक हमारा इनके साथ काफी ताल्लुक। हमने एक एंग्रो में रहते हुए यूएस में और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 2 डिपार्टमेंट अडॉप्ट किए। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हम लोगों ने उधर रिसर्च को भी अडॉप्ट किया हुआ था, उनको सपोर्ट कर रहे थे, फैकल्टी को भी सपोर्ट कर रहे थे, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी देख रहे थे, और उनके उसको एक्सेल करने में उसकी मदद कर रहे थे। तो ये इंडस्ट्री को मैंने कनेक्ट करना, इंडस्ट्री को कनेक्ट करना है विद द यूनिवर्सिटी।
और एडॉप्शन करवानी है डिपार्टमेंट से। ये मेरा अपना एक ख्वाब है, हमारा अपना ख्वाब है कि हम इस तरह लेके चल सकते। बैंकिंग सेक्टर को शामिल करेंगे, कराची में तमाम हेडक्वार्टर्स बैठे हैं बैंक, इनको शामिल करेंगे, इनसे प्रोग्राम जो है अडॉप्ट करवाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, जो MBA कर रहे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स में कुछ कर रहे हैं, जो मैथ्स में कुछ कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं। फिर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करें। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत चैलेंजेस हैं, उसके बिजनेस मॉडल में उसकी सपोर्ट करनी है, उसको आइडियाज देना है, उसको फैसिलिटेट करना है, और उनकी जो है उनकी परेशानियों को कम करना। वो हमारे भाई हैं जो पढ़ रहे थे हमारे साथ, आगे वो पढ़ा भी रहे, और वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। जिस तरह डीन जो है डॉक्टर इदरीस, उनके वालिद हमारे कैफेटेरिया के कॉन्ट्रैक्टर थे, आपको याद होगा 40 साल। आज वो डीन है, और उसको हमारी सपोर्ट की, उसने बड़ा ओपनली में स्टार है कि मुझे आप लोगों से बड़ी उम्मीद है, आपकी सपोर्ट चाहिए, और इसी बात पे स्टिक करके उन्होंने इलेक्शन करवा रहे हैं। मैं बताता चलूं कि कुछ फोर्सेस थी जो इलेक्शन नहीं चाह रही थी, वो कह रही थी इलेक्शन लड़ने दो, आपस में बैठ, बट ये एक्टिविटी में हमें करवानी ही थी। वो इसलिए कि एक तो जुड़ तो जाए। मुझे फोन आया कुआलालंपुर से, इंग्लैंड से, रोते हुए लोग, दोस्तों का, रेहान साहब, वो रो रहे। क्विक टाइम चेक। अभी हम 11:45 पे हैं हमारे टाइम जोन के हिसाब से। आप अगर 10 मिनट में इसको काइंडली रैप अप करें तो फिर हम कुछ मैं खत्म कर रहा हूँ क्वेश्चंस सर। हैं। जी हाँ जी, मैं बस वो तमहीद एक बांध दी है। मैंने ये कहा, उन्होंने दोस्तों ने फोन किया कि जी आप लोगों ने हमें जोड़ दिया 30 साल पुराने दोस्तों से। जी जी बिल्कुल, कंटिन्यू अच्छा प्लीज। सर, एक अलुमनाई पोर्टल बनाएंगे, और एक फॉर्मल पोर्टल होगा टू इंक्रीज एंगेजमेंट, और क्रिएट अ कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम। इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद में एक काम कर रहा है, हम इधर इंक्यूबेशन सेंटर का भी हमारे एक विश लिस्ट में से है कि इंक्यूबेशन सेंटर हो जहां बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, आर्ट्स एंड कल्चर को प्रमोट करेंगे, और आर्ट्स हम देखेंगे कि वहाँ ड्रामेटिक सोसाइटी कैसे काम कर रही है उसकी, और आर्ट्स एंड कल्चर पे, लिटरेचर पे क्या हो रहा है, उस पे हम उनकी सपोर्ट करेंगे। करिकुलम रिव्यू पे जाएंगे कि जहां जहां हम करिकुलम स्पेशलिस्ट से उनकी असिस्टेंस लेंगे कि हमारे करिकुलम में कहीं फ्लॉ है, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए वो उस पे हम इंगेज करेंगे। और वी विल इनिशिएट एक्सपीरियंशियल लर्निंग learning ELP program for final year students to process access to real world problems। जब बाबुल कायद से निकले तो उनको पता हो कि हमारे लिए जो बाहर दुनिया है कोई इतनी आसान नहीं है, उसकी हमारी तैयारी है कि नहीं है, उनके लिए उनको तैयार करें। दिस इज अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑफ आर 14 पॉइंट। 14, ये 14 पॉइंट तो 14 नहीं, ये 16 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। हमारी विश लिस्ट है, वी आर नॉट रिजिड टू दीज थिंग, बट वी आर होपफुल कि अगर हमें मौका मिला हम इसी रास्ते पे हम चलेंगे, और आप लोगों की गाइडेंस, सपोर्ट और रहनुमाई चाहिए होगी। थैंक यू थोड़ा रेहान सा साहब। रेहान साहब, डॉक्टर फैसल साहब, अगर इजाज़त दें तो 2-3 मिनट लेना चाहता हूँ, जी तो कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। परमिशन? जी प्लीज कंटिन्यू शाहिद साहब। जी थैंक यू सो मच रेहान साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया है। चंद एक चीज़ें जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ विद दिस ऑनरेबल पैनल, कि आई रियली फील प्राउड दैट आई एम द पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग एलुमिनाई सिंस 2001। मुर्जा नूर, आसिफ नूर और माई सेल्फ शाहिद मिनहास, हम लोगों ने इसको शुरू किया था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। हमसे पहले कायदीन काम कर रही थी, और फिर हमने मैं G9 में रहता था लकीली, फिर वो मेरे ही ड्राइंग रूम में बैठ के हम सारा दिन काम करते थे, शाम को बैठते थे, मिनट्स करते थे। आसिफ और मुर्जा चले जाते थे डोर टू डोर कैंपेन में डेटाबेस के लिए, मेरे ज़िम्मे मैनेजमेंट के काम होते थे, इवेंट प्लानिंग के काम होते थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। 2001 से 2001 से 2008 तक एक्टिवली मैंने काम किया है साथ में आसिफ नूर के, मुर्जा नूर के। फिर राय सिकंदर साहब को प्रेसिडेंट लिया गया, जहीर डार साहब को
इवेंट्स का जो एनुअल डिनर होते थे, जितने भी इवेंट्स होते थे, उनके वो चेयरपर्सन थे। और हमने जो पहला डेटाबेस बनाया था उसकी डायरेक्टरी आज भी अवेलेबल है। वो 556 के करीब जो कायदीन थे वो उसमें रजिस्टर्ड थे। और जो कायदीन अलुमिनाई जो पहले से थी उसने हमें स्ट्रेंथन किया, उसने हमें सपोर्ट दिया, उन्होंने हमें डेटा दिया कि आप इसे यहाँ से कंटिन्यू करें। तो जो पीछे एक एक्सपीरियंस आ रहा था वो उसको हमने थोड़ा सा डॉक्यूमेंट किया और आगे चले। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2008 तक इस्लामाबाद में रहा, फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात चला गया। तो उसके बाद थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया मैं अलुमिनाई से। 2013 में मैंने फिर वापस आके ज्वाइन किया इस्लामाबाद में। बट एनीवे उस तरीके से फिर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, या जो भी रीजंस थी उसकी या नहीं करने दिया गया। बट वी हैव सम एक्सपीरियंस हाउ टू रन द अलुमिनाई, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सम कंट्रीब्यूशन, और उसमें कुछ इवेंट्स भी किए। हर साल अगर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी अलुमिनाई ने 6 एनुअल डिनर किए हैं, एक्सटेंसिव एनुअल डिनर, तो वो 2001 से 2006 तक हुए हैं, जिसमें 500 प्लस जो है कायदीन वो उसमें शिरकत करते रहे। एंड दिस इज ऑन द रिकॉर्ड, और इसमें बहुत सारे सीनियर साथी आपको वो बता सकेंगे। एक और चीज़ जो चूँकि अलुमिनाई चल रही थी, एक और चीज़ जो शेयर करना चाह रहा हूँ कि उसमें 2001 से 2021 तक हमारे पास जो डेटाबेस है 2022 तक, उसमें 3000 अलुमिनस जो हैं उसमें रजिस्टर्ड हुए। और इलेक्शन अनाउंस होने के बाद अब तक का जो डेटाबेस है उसमें 11,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए हैं, विच इज़ ए ह्यूज कंट्रीब्यूशन। सो विच मीन्स के जो ये इस तरह की एक्टिविटी है इलेक्शन की, इट्स ए हेल्दी एक्टिविटी, जिससे जो कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ी है, और जिसमें जो है वो बेनिफिट जो है इंशाल्लाह कायदीन को मिलेगा। और इसमें एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि रेहान साहब ने बता दिया, एकेडमिया एंड इंडस्ट्री लिंकेजेस में, और ख़ासकर एकेडमिया थिंक टैंक कोलैबोरेशन, वी बिलीव इन एकेडमिया थिंक टैंक कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। उसमें एक छोटी सी काविश हमने की है पिछले 4 सालों से 5 सालों से, मैं चूँकि इस्लामाबाद में हूँ 10 सालों से। सो उसमें कैस्पर नाम से हमने एक कंसोशियम बनाया है, जो है काउंसिल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सस्टेनेबल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसमें 6 थिंक टैंक्स हैं और 24 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। हम उस कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं और ग्रेजुअली हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है थिंक टैंक्स की, जो ब्रेन है, जो नॉलेज है, जो ट्रेंड्स हैं, उसको एकेडमिया के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। और जो हमारे करियर काउंसलिंग होंगे उसमें कैपेसिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हम इंशाल्लाह ले रहे होंगे, और स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो चीज़ें जो हैं वो हम उनको देंगे। क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन है, मैं IIE पैकर्ड फाउंडेशन का मास्टर ट्रेनर हूँ लीडरशिप के ऊपर, हायर एजुकेशन कमीशन का मैं ट्रेंड मास्टर ट्रेनर हूँ कैपेसिटी डेवलपमेंट फॉर द फैकल्टी। तो मैं उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और वो हम इंशाल्लाह ताला अपनी यूनिवर्सिटी के लिए करेंगे। हमारे पास पूरा प्लान है, और इंशाल्लाह ताला हम एक और तरफ जिस तरफ लेके जाएंगे अलुमिनाई को, यूनिवर्सिटी को, विद द मैनेजमेंट एंड विद द एडमिनिस्ट्रेशन, कि इसका जो सस्टेनेबल एक फंड है जिसकी रेहान साहब ने बात भी कही, उसके लिए वी हैव ए प्लान कि एक ऐसा एंडोमेंट जिसमें हमारे पास सस्टेनेबिलिटी भी होगी, उसको हम लेके आएंगे। और वो प्लान जो है वो हम इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर करेंगे, कैसे इस यूनिवर्सिटी के अपने ही रिसोर्सेज से हम ना सिर्फ उसके एक सस्टेनेबल फंड जनरेट हो जाएगा, बल्कि इनोवेशन और स्टेट ऑफ द आर्ट जो इस वक्त दुनिया में एजुकेशन है, उसको जो हमारा डायस्पोरा है उनकी मदद से, उनकी हेल्प से हम यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके आ रहे होंगे। एक आधा पॉइंट और शेयर करूँगा जी। थैंक यू सो मच। बस लास्ट जस्ट 1 मिनट। और उसमें सिर्फ ये है कि ऐसा नहीं है कि अभी तक अलुमिनाई ने या वो साथी जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया काम नहीं किया, काम किया है। सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि एक कनेक्टिविटी रही है। कुछ साथियों ने जिन्होंने इसको कंटिन्यू किया है, उन्होंने एटलीस्ट अलुमिनाई को जिंदा रखा है। और आज हम जिस जगह पे हैं, सो यहाँ से ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बेस के ऊपर एक अब बड़ी कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग बनने जा रही है। एंड वी आर थैंकफुल टू ऑल दोज जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू कि जो आप हमें जो इस तरीके से आपने एंगेज किया है, विच इज़ मेरा ख्याल है कि अगर ये ना इलेक्शन होते तो आके हमारा ये कनेक्ट जो है पूरी ग्लोबल जो हमारे कायदीन उनके साथ ना होता। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आई विल स्टॉप माय सेल्फ हियर। थैंक यू शाहिद साहब, एंड थैंक यू रेहान साहब फॉर अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। वी गो बैक टू खालिद साहब इन न्यू जर्सी टू टॉक अबाउट कायदियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका।
couple of minutes. खालिद साहब आप अनम्यूट कर लें. Okay, sorry. So what I was saying is this break is not that we are moving somewhere else. So stay here. So we wanted to show one of the 4 programs which we are running here. Today on the forum where we were talking, actually this is a regular forum, and we do once every month on Saturday. And for some of the previous highlights are, so there was a talk from Urwa Sekhani. She's a daughter of a Quaidian. And then there was a talk from Aslam Chaudhry, who is a Quaidian himself in North America, running his own business. So we are facilitating and promoting innovation and entrepreneurship. So previous few जो program थे उनमें हमने पहले एक दफा introductory call थी. Then we talked about artificial intelligence. Then we talk about COVID data and what it is telling us. Then we highlight Pakistan innovation, young engineer won innovation award from Prime Minister House. And then we actually did a survey among our members, what topic they would like to hear more about it, finances, for example. And one of our next program would be on finances. So what we'll do is every Saturday from here for the next 4 Saturdays, we'll share one of our program. And today was this highlight from us. So with this, I give the podium back to Faisal and Fida for the question and answer session to start. Thank you very much. Thank you, Khalid साहब. Hello. किधर है? शायद को क्या था? शाहिद साहब या रेहान साहब आप Hello. अनम्यूट कर लें. आपको मेरा क्वेश्चन सुनाई दिया? और shall I नहीं, read अभी it? नहीं दिया. दोबारा प्लीज रिपीट कीजिए. जी, क्वेश्चन था कि हमें बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स की तरफ से सवालात मिले. आई लाइक टू एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूटर्स. गुलफशान, मोहसिन कियानी, तारिक शाह, मोहम्मद अहमद, खालिद महमूद, इजलाल हुसैन, अंसर, साजिद खान, फिदा, नुमान, इन सब लोगों ने हमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल भेजे. तो पहला क्वेश्चन मैं इस पैनल से ये करना चाहूँगा कि आप हमें एक्सप्लिसिटली एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म गोल बताइए और इसका क्या इम्पैक्ट होगा इल्यूमिनाई पाकिस्तान के अंदर और ओवरसीज के लिए. सर आप अनम्यूट कर लें शायद साहब. जी, रेहान साहब, शुड आई गो फर्स्ट? जी, आई थिंक कि जो 2 काम हम इंशाल्लाह करने जाएंगे. सबसे पहले एक तो ये है कि engagement of all the Quaidians, either they are in country or they are abroad, उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाके और एक यूनिफॉर्म एक
कलेक्टिव जो है विजन जो है वो डिजाइन करेंगे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, उसमें हम उसको फिर आगे कैसे लेके चलना है, सो दैट इज देयर। दूसरा जो कंपोनेंट मेरे ख्याल में हम करने चाहेंगे, सो दैट विल बी द एंडोमेंट फंड। वो इन 2 चीज़ों को हम फोकस करेंगे। जो एंडोमेंट फंड है ऑब्वियसली फिर वो स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। सो इन 2 चीज़ों पे इन माय ओपिनियन विल बी फोकसिंग ऑन इमीडिएटली। रेहान साहब आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? रेहान साहब अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। रेहान साहब रेहान साहब ने म्यूट किया हुआ है, तो बोल रहे हैं लेकिन म्यूट है। हाँ, रेहान साहब आप ऑनलाइन म्यूट पे हैं, ऑनलाइन नजर आ रहे हैं लेकिन म्यूट पे हैं। बोल भी रहे हैं, बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। होगा, अब होगा। हेलो हाँ, जी जी, हेलो। हो गया। हाँ, ये हाँ, उसमें वो परमिशन मांग रहा होता है कि इट्स नॉट अलाउइंग यू टू अनम्यूट। जी जी अच्छा सर, जिस तरह अभी शाहिद ने कहा है ना, देखें मैं बात में दोबारा वही रिपीट करूंगा। देखें कि आप जब जाते हैं कैंपस में तो आपको पता लगता है कि आपके पास फौरी करने वाला काम कौन सा है। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों को जो वहाँ मुख्तलिफ दुनिया जगह बैठे हैं उनको इनवाइट करना शुरू कर दूंगा कि वो आएं। और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हम हमारे जब हम लोग जाना शुरू करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि वहाँ उनकी नीड है क्या। जो नीड हमें नजर आ रही होती है, एक तो जो यूनिवर्सिटी को सबसे बड़ा चैलेंज है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए उसको। आपको उसके लिए आपको जो है वो अपने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे बड़ा आपका स्टेक होल्डर गवर्नमेंट इटसेल्फ है। उसको उस उधर हमने पहले जो है फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो अलाइन करना है टू क्रिएट मोर फंड फॉर द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को अब देखें हमें हमारा रोल जो है फैसिलिटेशन का है। उसमें हमने अपना ड्रीम और अपना विजन देना है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसकी प्रेजेंस में हम लोगों ने ये चीजें आगे लेके चलनी। अब मैं फर्ज करें आपको किसी को इनवाइट करता हूँ पाकिस्तान में, आप आके देखेंगे कि केमिस्ट्री वाले आके देखेंगे कि केमिस्ट्री लैब को, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को क्या जरूरत है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस वक्त यूनिवर्सिटी में ये नहीं पता कि नेचुरल साइंस, हमारे दौर में एक नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस होते थे और उसके ऊपर यूनिवर्सिटी की अम्ब्रेला होती थी। हमने उसी मॉडल को दोबारा लेके आना। यूनिवर्सिटी को 2 हिस्सों में रखना है, एक सोशल साइंसेस और एक नेचुरल साइंसेस डिपार्टमेंट। और फिर एक और चीज, हमारी यूनिवर्सिटी ने जो है वो एफिलिएटेड इदारे बहुत। अभी इन्होंने उनको इजाजत नहीं दी वोटिंग की। जो कायदे यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर्स हैं जो दूसरे इदारों के से डिग्री कर रहे हैं लेकिन वो एफिलिएटेड है में कायदे यूनिवर्सिटी, वो उनका भी हमारे पास पूरी डिटेल आनी चाहिए कहाँ कहाँ कायदे यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड स्टूडेंट्स हैं। यूनिवर्सिटी की एक अपनी पॉपुलेशन 14,000 की, फिर बाहर भी फैली हुई बहुत। हमने अच्छा फिर हमारे एक यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो है उसके एसेट्स, जो फिजिकल एसेट्स वी हमने उसमें इनको सपोर्ट करना है। जो हमारा अपना ख्याल है कि पहले तो हम ये चेक जाके आइडेंटिफाई करेंगे यूनिवर्सिटी के पास अपनी एग्जैक्टली लैंड कितनी रह गई। लेट मी टेल यू वन, आपके लिए सरप्राइजिंग फैक्टर होगा। स्कूल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस घोड़ा गली वहां से शिफ्ट होके कायदे यूनिवर्सिटी के एरिया में आ गई। SMI स्कूल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस वो वहां अपनी प्रीमिसेस बना चुके हैं। अब आप ये देखें कि आपके चैलेंजेस ह्यूमंगस हैं। आपको अपने स्टेक होल्डर्स को कितने कितने एहतियात के साथ लेके चलना। फिर आपने अपने जो एक्सटर्नल आपके बड़े बड़े इदारे हैं उनको कैसे लेके चलना, उनमें कैसे जगह बनानी है ताकि हम कोई बगैर किसी डिस्प्यूट के, किसी कंट्रोवर्सी के इसको आगे लेके चल सके। थैंक यू रेहान साहब। अब हम फिदा के तरफ चलते हैं, वो अगला क्वेश्चन पूछते हैं जी। जी थैंक यू वेरी मच। रेहान साहब, दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि हाउ यू गाइस आर गोना इन्वॉल्व ओवरसीज एलुमनाई फॉर द बेटरमेंट ऑफ QAU
Do you guys have any plan? Any thoughts about it? देखें एलुमनाई जो बाहर बैठी हुई है उसका हमारे पास सबसे पहले डाटा होना चाहिए, कौन कौन कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन पे बैठा हुआ, हमारे पास पूरा उसका डाटा हो, हमें पता चले कि कितने इन्फ्लुएंसर्स वहाँ मौजूद हैं। हमारे पास एक हमारा दोस्त था तारिक मलिक, दोस्त है, वो आया, नादरा ज्वाइन की उसने, वो चला गया। आप लोग किस किस पोजीशन पे हैं हमें पता होना चाहिए, हमें आपका पूरा डाटा हमारे पास होना चाहिए। हम आपसे उसी तरह ही आपको आपके जो कंट्रीब्यूशन है वो हम लेना शुरू करेंगे। आप अगर पढ़ाते हैं तो आप एक हफ्ता पाकिस्तान आके भी पढ़ा लें यूनिवर्सिटी, गर्मियों की छुट्टियों में आ रहे हैं फैमिली के साथ, 4 दिन हमारी यूनिवर्सिटी को भी दे दें, 5 दिन यूनिवर्सिटी को भी दे दें। जिस वक्त आप इंगेज करना शुरू करेंगे ना, तो चीजें वहीं से डेवलप होती जाएंगी, वहीं से आगे बढ़ती जाएंगी, एक नई से नई चीज आप मुझे आगे बताएंगे यार ये भी ऐड कर देना चाहिए, इसमें हमें एक नया प्रोग्राम भी शुरू कर देना चाहिए। बच्चे तो बहुत पीछे रह गए यार, ये तो बच्चे जो करिकुलम पढ़ रहे हैं ये तो आउटडेटेड हो गया। आपको नई नई चीजें सरप्राइज देना शुरू कर दें, और आप फिर उस वक्त खुद कह रहे होंगे कि यार यहाँ हम ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरे पास तो अभी डाटा ही नहीं है ना आप लोगों का, मैं तो आपको अब मिला हूं, आपसे रब्ता हुआ है। हेलो, जी आवाज आ जी रही? जी थैंक यू रियान साहब, म्यूट कर लें। थैंक यू रियान साहब। और आपने तारिक मलिक का कई दफ़ा तज़किरा किया आज की प्रेजेंटेशन में। आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि वो हमारी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी नॉर्थ अमेरिका के एसोसिएशन के मेंबर हैं और यहीं पे होते हैं और हमारे अक्सर इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। बहरहाल, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आपके बेंचमार्क और इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी को थोड़ा हाईलाइट करें कि जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी इस एलुमनाई एसोसिएशन के हवाले से, उसको आप कैसे विजिबल करेंगे सारे एलुमनाई के लिए। आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, जी जी, आप बात कीजिए। आवाज आवाज नहीं आ रही? आ रही है आपकी आवाज। हेलो, जी आवाज आ रही? जी जी, आवाज आ आ रही रही? है। जी अच्छा देखिए, मैंने 2 गेट टुगेदर्स कराए, एक 2016 में और 2018 में। एक में तकरीबन 250 के करीब दोस्त आए थे, उसके बाद दूसरे में ज्यादा लोग आए थे, 350-400 के करीब, और दोनों यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस के अंदर किए थे। तारिक मलिक भी एक में आया था, एक में फैसल तिरमिजी भी, वो उस वक्त शिकागो में था, वो भी आया था। देखिए, सबसे पहले तो जब आप लोग आना शुरू करते हैं, वो जो 2 गेट टुगेदर थे ना, उधर भी हमें अंदाजा हो गया था कि यार हम हमारी यूनिवर्सिटी बहुत पीछे रह रही। तो हमें सबसे पहले हमने जो है वो जो आप माइलस्टोन की बात कर रहे हैं वो ये है कि हमने एक लोगों को एक दफा गैदर करना है, जो पाकिस्तान में भी बैठे हैं बाहर भी बैठे हुए हैं, उनको उनको बुलाना है, और उनको बुला के हमने उनको जो है वो एक्टिव करना है कि आप जो हैं वो अपने अपने एरिया में हमें कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। अब आपको मैं एक तो सबसे पहले हमें रजिस्टर भी करानी है, हमें सबसे पहले तो एलुमनाई को रजिस्टर कराने जिसका इलेक्शन हो रहा है उसका जो है वो जो रियल स्टेटस है वो हमें क्लियर करना है कि हमें उसको इट इज रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नाम, एज अ ट्रस्ट और एज एन एनजीओ जो भी है वो हमने उसको पहले रजिस्टर करना है। और फिर हमने जो है वो नीड एनालिसिस शुरू कर देना है कि वेयर इज द नीड इन विच एरियाज, वेयर इज द रियल नीड। स्कॉलरशिप की नीड है, कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ नीड है, फंड्स की नीड है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की नीड है, वो सब चीजों उन उन सब एरियाज की तरफ हमें ग्रेजुअली ग्रेजुअली आगे चलना। हेलो।
अच्छा, रेहान साहब, आपसे और आपके पैनल से मेरा अगला सवाल ये है कि what is the strategy of this panel to develop research profile of QAU and bring it par with the top universities of developed countries, including our own private university in Pakistan? अल्लाह साहब, हेलो हेलो जी रेहान साहब। हेलो, मल्ला साहब है लाइन पे? हेलो, जी जी, रेहान साहब मैं अनम्यूट था, तो सॉरी अनम्यूट हुआ हूं अभी। मैं एक दो चीजें मैं अर्ज करूं जो इवन पिछला सवाल भी था और अभी भी जो आपने रेज किया है। जो हमारे ये 14 पॉइंट्स हैं उसमें कुछ तो ऐसे हैं जिसमें आपको डायरेक्ट आपको फाइनेंस चाहिए, लेकिन कुछ में ऐसा है जो कि लिंकेजेस से आपका काम चल जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि पिछले हफ्ते जब मैं गया अर्थ साइंसेज डिपार्टमेंट में, तो उसके प्रोफेसर ने कहा कि जो अर्थ साइंसेज के अलुमनाइज थे, सिर्फ हमने उनसे राब्ता किया और वहां से कुछ हमारे पास डायरेक्ट इक्विपमेंट आए, फंडिंग भी नहीं आई, पैसे नहीं आए, फाइनेंस नहीं मिली, लेकिन जब हमारे पास वो मिले, अपना इक्विपमेंट मिले, और जब बच्चों ने उस पर काम शुरू कर दिया, तो वो बच्चे जिनकी प्लेसमेंट यानी ग्रेजुएशन करने के बाद जब ऑर्गेनाइजेशन में आ रही, तो वहां से अप्रिसिएशन लेटर आना शुरू हो गए कि कमाल का आउटपुट दे रहे हैं बच्चे, यानी इनकी ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ रही हमें। तो इस तरीके से फर्ज करें कैरियर काउंसलिंग है, इस तरह के एक रेहान साहब शुरू में बता रहे थे कि हम करेंगे अपना कुछ इंक्यूबेशन सेंटर है या अपना इंडस्ट्री लिंकेजेस वगैरह है, ये यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी अवेलेबल हैं इदारे, लेकिन इसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसको मार्केट के साथ जो है वो जो है करवाना पड़ेगा, उनकी कनेक्टिविटी करवानी पड़ेगी, और उसके बाद आप प्रोडक्टिविटी देखेंगे। जहां तक आपका सवाल है रिसर्च के हवाले से, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस एज अ प्रोफेसर हूं, मैंने अपनी जो इसमें बैकग्राउंड में आप वर्चुअल इसमें मैंने लगाया हुआ है, इसमें आप देखें कि कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी नंबर 1 है पाकिस्तान में, जो 24 की क्यूएस रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग आई है। उसके बाद नंबर 315 है या 12 है, 313 या 312 या 15 नंबर पे ये वर्ल्ड में आई है। और मजेदार आखिर में आप इंडिकेटर एक देखें कि रिसर्च आउटपुट जो है, जिसको हम साइटेशंस के जरिए ये क्यूएस रैंकिंग वाले चेक करते हैं, वो दुनिया में 40वें नंबर पे है, दुनिया में। ये नहीं कि सिर्फ ये जो है किसी एशिया में या पाकिस्तान में, दुनिया में। इसका मतलब है कि हमारा अभी तक जो साइटेशंस के हवाले से है वो रिसर्च आउटपुट तो ब्रिलियंट है, और वो मैथमेटिक्स है या फर्ज करें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, बायोलॉजिकल साइंसेज है, ये जो पुराने डिपार्टमेंट थे उनकी साइटेशंस बहुत अच्छी चल रही हैं। इशू क्या है? इशू ये है कि अभी मैंने जिस तरीके से बताया कि इनको कनेक्ट करवाने की जरूरत है इंडस्ट्री से, वो एक गैप नजर आ रहा है हमें। यानी बच्चा, आप फर्ज करें, आप सवाल करते हैं कि यार चलो ठीक है, रिसर्च आउटपुट जो है आपका साइटेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस रिसर्च का कम्युनिटी को फायदा क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है ये एक लिंक मिसिंग है जिस पे हमने काम करना है, जिसकी मैंने जानबूझ के ये स्लाइड लगाई हुई कि मैं दुनिया को बताऊं कि मेरी यूनिवर्सिटी दुनिया में 40वें नंबर पे रिसर्च आउटपुट पे, और इसको हमारा प्लान ये है कि इंडस्ट्री के साथ इंशाल्लाह लिंक करवा देंगे। शायद सब कह रहे थे कोई ऐड करना था शायद इस पर। जी शायद सब कुछ ऐड करना चाहिए। जी शायद साहब। जी, दो क्विक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जैसे रेहान साहब ने भी कहा, मल्ला साहब ने भी, पहली तो बात यह है कि जब हम ग्लोबल कोलैबोरेशन में जाएंगे या एक्सप्लोर करेंगे जो कायदीन है, तो फिर हम रीजनल चैप्टर बनाएंगे। एशिया चैप्टर है, मिडिल ईस्ट चैप्टर है, यूरोपियन चैप्टर है, नॉर्थ अमेरिका चैप्टर है, ताकि हमें भी और उनको भी आसानी हो कि उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट करना है कायदीन यूनिवर्सिटी के लिए। दूसरा, जो कोलैबोरेशन की बात पहले भी की थी कि हम थिंक टैंक्स के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है, जो लेटेस्ट करिकुलम है, उसको प्रपोज करेंगे कि वो हमारे डिपार्टमेंट्स में, सोशल साइंसेज में ख़ास तौर पे और प्योर साइंसेज में उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, अडॉप्ट किया जाए। और तीसरा जो कंपोनेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ वो है कि R&D फंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड जो है, वो हम कोशिश करेंगे कि वो हम उसको डेवलप करें। और R&D जो
डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसके साथ कोलैबोरेशन में जाके यूनिवर्सिटी के लिए कुछ R&D के लिए फंड्स ला सके। थैंक यू जी शाहिद साहब, बहुत अच्छी बात है। जस्ट हाईलाइट करता चलूं कि नॉर्थ अमेरिका चैप्टर ऑलरेडी मौजूद है, जिनके प्लेटफॉर्म पे आप अभी बात कर रहे हैं। सिर्फ हमें जी मदरशिप माशाल्लाह, जी जी एलुमनाई माशाल्लाह। से कनेक्ट करने की जरूरत है। थैंक यू। नहीं, इसी तरह बाकी भी जो है वो जी बेशक। बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा, बहुत अच्छी बात हुई। ये भी है कि हमारा करिकुलम जो है वो थोड़ा सा पुराना है। इट नीड टू बी ब्रॉट इन लाइन एंड एट द स्टैंडर्ड सेट बाय टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इस सिलसिले में आप लोगों की क्या स्ट्रेटजीज हैं? आप बात कीजिए शायद साहब। जी यस जी, अब हो गया अनम्यूट। अच्छा, जैसे पहले गुजारिश की कि जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके करिकुलम को रिव्यू करके हम उस करिकुलम को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अपनी टॉप मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के उनके साथ कहेंगे कि ये इनकॉर्पोरेट करें, ये चीज़ें जो हैं अब अपने सिलेबस में ले आएँ। अब 5 साल से बाद चीज़ें ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाती हैं। सो बिल्कुल। हम 20-20 साल पुराना जो है करिकुलम उस पर चले हुए हैं, तो हम जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ है रेलिवेंट डिपार्टमेंट से उनके साथ कोलैबोरेशन भी करेंगे, MOUs भी करेंगे और उनका करिकुलम भी हम अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बाकी थैंक यू। साथ ही ऐड कर। जी रेहान साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? डॉक्टर आसिफा कुछ शेयर करना चाह रही हैं हमारे पैनल ओके, से। डॉक्टर असफिया आप कुछ ऐड करें। हेलो जी डॉक्टर असफिया, हेलो जी जी हेलो। डॉक्टर असफिया को अनम्यूट कर दें, जी, वो उनको कुछ ऐड अनम्यूट करना। कर, शी शुड बी अनम्यूटेड नाउ। अपने कहना खोले अपना। जी, अस्सलाम वालेकुम। Am I audible जी? जी वालेकुम अस्सलाम, जी बात कीजिए। जी जी। अच्छा जी, I just did not get a chance to introduce myself, so I'll just quickly share with you. I did my master's in public administration in the 99 from the 97 to the 1999 batch. Followed by that, I've been working since the last 24 years at NUST. I did my PhD from Manchester Business School in 2012. I've been an academic all throughout. मेरे portfolio में currently I'm a professor in the Department of Management and HR at NUST, and I'm heading the department as well. In the 24 years of my service as an academic, मैंने काफी सारी areas पे काम किया, but my forte is primarily in 2 areas. One is quality assurance, जो कि बहुत ज्यादा important है आजकल in terms of ranking, rating, and that is linked with curriculum as well. So since 2005, I have been linked with curriculum development and management. So at the university, मैं पहले in 2005, I was the director of the undergraduate program, BBA program at NUST. उसके बाद I have also been the program director for the MBA program. फिर जब I did my PhD, I came back. I started heading the department. I have developed 3 MS programs in the department, an MS program in HRM, in entrepreneurship, and so on and so forth. मैं quickly ये बात करना चाह रही हूँ कि I have been linked with Higher Education Commission of Pakistan as a subject expert in their National Curriculum Review Committee for some time. And it is a difficult proposition to make a headway there. Public sector universities are sort of, this is a hurdle they face. But having said that, हमने NUST में भी इस चीज को किया है, तो have a lot of experience of how curriculums should be designed and उनकी approval के processes में.
मैं पाकिस्तान में जो बिजनेस स्कूल्स के लिए या जो बिजनेस एरिया के लिए नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल है. So it is like the QS, which is an international ranking body, but in Pakistan we have the National Business Education Accreditation Council. I am a senior member in that council. I've been working with them since 2011. I go on peer review visits. I am a mentor for many universities in Pakistan. तो जहां तक करिकुलम की बात है ना जी, करिकुलम is a process which is a continuous process. तो उसमें जाहिर है करिकुलम की एक ओवरऑलिंग comes every for undergraduate programs. आप हर तीसरे साल शुरू करते हैं तो 5th year में करते हैं, but उसकी continuous semester wise you look at your curriculum and what is going on. Student की feedback होती है, faculty की feedback होती है. तो उस सिलसिले में आई थिंक जैसे शाहिद साहब अभी बात कर रहे थे, we have international universities with which we will benchmark, but we have local universities as well. और हमारे पैनल में there are a number of people who are जो हैं, आई थिंक डॉक्टर कलीम अभी आज यहाँ पे शायद होम, मैंने उनको लिस्ट में देखा नहीं, but we have a background of working in the academia and we are thorough academics. So as far as curriculum development is concerned, उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें एक मेजर एरिया इज कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फैकल्टी. सो आप मॉडर्न करिकुलम तो ले आएंगे मगर उसको पढ़ाने के लिए फैकल्टी चाहिए है, जिसमें इट कनेक्ट्स विद व्हाट रेहान साहब वाज सेइंग दैट वी नीड टू बिल्ड अ एंडाउमेंट फंड, बिकॉज बहुत सारी चीजें अब गवर्नमेंट फंडिंग इज श्रिंकिंग सिंस द लास्ट 5-6 years, और लास्ट 3 years से काफी कम है फंडिंग जो मिल रही है यूनिवर्सिटीज को. सो कैपेसिटी बिल्डिंग वर्ल्ड ओवर एंडाउमेंट में से जो होती है उसमें स्कॉलरशिप्स आते हैं और अ पोर्शन ऑफ इट ऑल्सो goes to the faculty development. So वो एक पूरा process है जिसको हमें लेकर चलना है. I think we have senior people working in QAU as well, but हम जैसे लोग जिन्होंने और universities के लिए contribute किया है, I think we can definitely run refresher programs, training programs, pro bono पे भी कर सकते हैं sir university, so that क्योंकि हम curriculum तो दे देंगे लेकिन implement उन्होंने करना है. एंड जैसे रेहान साहब ने कहा, जो बाहर से लोग हमारे आप लोग हैं, there may be other people as this develops further and there will be other chapters, so they coming as guest speakers. A lot of things people don't even have to physically come. हम अपनी यूनिवर्सिटी में भी कराते हैं, QAU में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि we can bring people online and they can contribute in guest sessions. So it doesn't mean that always we would require people to come physically. Physical का अपना impact होता है, but I think that is also something that we can do, not just to develop but to deliver the curriculum. Thank you, Dr. Asfiya. Thank you very much. Thank you very much. मुझे एक इसमें कमेंट, एक छोटा सा कहना था कि पाकिस्तान में जो दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और हमारी यूनिवर्सिटी है, कि इसकी हम इतने लैग क्यों कर रहे हैं, जो कि वो मॉडर्न हैं. इस पे आप कमेंट कर दीजिएगा कोई भी. लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो मैं ये कहना चाहता हूँ, डू यू सी एन एक्टिव रोल ऑफ करंट फैकल्टी मेंबर्स इन अफेयर्स? इफ यस, देन व्हाई इट इज नॉट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स कि कोई इंडिविजुअल हमारा QAU के जो लोग हैं वो किसी गवर्नमेंट ऐसी पोजीशन में है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है या और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है जो ऐसे हैं, तो वो कैसे यूनिवर्सिटी को हेल्प करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में. काफी लोगों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस बारे में भी है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे खत्म करना. थैंक यू. जी रेहान साहब. रेहान साहब आप अनम्यूट कर लीजिए. आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है, आवाज आ रही जी. सर ये एक बड़ा सीरियस चैलेंज है और हमने इसको हाईलाइट किया यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कि क्लियर आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है लोगों का, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के मालिक भी हैं एक साहब, और वो अलुमनाई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में भी.
ऐसे नहीं होना चाहिए। इसकी वजह ये नहीं कि वो कंट्रीब्यूट नहीं शायद करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने कारोबार की तरफ तवज्जो ना दूं, और जब कारोबार भी एक है, और मैं यूनिवर्सिटी के एक पब्लिक यूनिवर्सिटी को कैसे बेनिफिट दे दूंगा कि मेरे लिए एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जिसका मैं ओनर खुद दूंगा। से मैं अभी पिछले दिनों जब मैं गया तो उनको हमने बताया, तो यूनिवर्सिटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने इसको हाईलाइट करके दिया है, तो उन्होंने इस बात को, इस पे उनका इदराक है, और वो इस बात को सीरियसली ले रहे हैं। सिमिलरली उन्होंने हमें प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के एग्जिस्टिंग प्रोफेसर और फैकल्टी मेंबर्स, दे वर ओपनली कंपेनिंग फॉर सम पीपल, उनको भी हमने रिस्ट्रिक्ट किया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है, हमने जहां तहां हम कोशिश कर रहे हैं इसको हाईलाइट करने की, भी उनको बता भी रहे हैं, और उनको लिख के भी भेज रहे हैं, ईमेल भी कर रहे हैं कि इस चीज को वो अवॉइड करें, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और वो या जो उनके भी इस वक्त नॉलेज में आ चुका है, जो कंटेस्ट कर रहे हैं, कि पीपल आर नाउ कंसर्न अबाउट दिस, दे टेक इट सीरियस। जी, थैंक यू रियान साहब। हम टाइम हमारा आज का जो है वो ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए, आप लोगों ने काफ़ी सवालों के जवाब दिए। कुछ और पैनल स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। अगर आप उनके जवाबात हमें इन राइटिंग दे दें तो ग्रुप में पोस्ट कर दिए जाएंगे, ताकि लोगों को उनके जवाबात मिल जाएं। नाउ आई ट्रांजिशन ओवर बैक टू खालिद साहब टू रैप अप। Hello, everybody. Thank you very much for staying with us here. So we had almost 56, about 60 people at height, and we still have majority of them with us. Thank you. Appreciated your time and your effort to present your case in front of the members here and asking for the vote. From my side, I have heard your speech and your pitch. Appreciated that chemistry was mentioned here. I'm a chemist. I graduated from chemistry department, and we have a more deeper link with the chemistry department and so on and so on. And I have a lot of information in that area. Having said that, there are actually plenty of other questions, and specifically the question which came for conflict of interest is a very serious and very deep question. There's people, for example, nepotism is also in the same area, but then I'm not in a, we don't have time for this type of discussion. The areas you have touched require much more time, but then I think we have beginning to collaborate with Pakistan, from Pakistan and to Pakistan with overseas. So overseas people cannot give you, let me rephrase this. Overseas Pakistanis can give you money, but that's not actually their asset. Their asset is their knowledge and experience. And I have come across people from Pakistan who say to me that just send the money and that's it. That's what we need from you. So please try to understand what is the asset you have sitting outside. It's not the money, it's something else. So with this, I conclude that session, and there will be another similar meeting next week. I encourage everybody who is here, come back and hear the second panel and third and fourth panel, and then compare each other. And we will try to ask very, very similar questions. It's very difficult to ask identical questions because then there's no novelty. But we shared with you the 6 categories, and we will stay within those categories and we'll ask them very similar questions. We'll try to be fair as possible. We are non-partisan group, and if you have any misgivings after hearing a couple of other Zoom calls like this, reach us to us, and we will try to remedy your complaints. Absolutely. Thank you, Rehan and company, and thank you very, very much, everybody. Thank you, Khalid Saab. And just to add a final remark, that today's session will be recorded and the recording will be available on our YouTube channel in a few hours. Thank you so much. Thank you, panel. Thank you, everybody. Thank you for this opportunity. It was a wonderful meeting.
God bless और you. कोई क्वेश्चन, कोई और चीज, कोई भी चीज है जो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आप प्लीज हमें शेयर कीजिएगा, या हमारा जो पैनल का हमने ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप रेहान साहब भी शेयर कर सकते हैं। तो मसलन कि वो वहाँ पे हम सब पैनल्स के साथ एक ही तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि सबको पता हो, सब एक लाइन पे हो। तो कोई भी चीज़ हो तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो चीज़ हम कर सकते हैं ताकि इस प्रोसेस को हम अच्छी तरह से फैसिलिटेट करें और जो ना हेल्प कर सकें कि हमारे पैनल्स की आवाज़ जो है जहाँ तक सब तक पहुँच सके और सारे लोग इसमें शामिल हो सकें। खुदा हाफिज एवरीवन, थैंक यू।